علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور یہ ہم جو کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے۔ ہمیں صرف یہ پہلو نظر آتا ہے کہ یہ بڑی شرف اور بڑی فضیلت کی بات ہے، ہمیں اسی حدیث کا وہ دوسرا پہلو نظر نہیں آتا کہ حضرات انبیاء کرام پر جو ذمہ داریاں تھیں، جو بوجھ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تصدق سے وہی بوجھ علماء کے کندھوں پہ آیا ہے۔ یہ صرف شرف اور فضل کی میراث نہیں ہے جو علماء کو ملی ہے، وہ ذمہ داریاں بھی ہیں جو حضرات انبیاء کرام کے کندھوں پر تھی، وہ علماء کے کندھوں پہ منتقل ہو چکی ہیں۔ اور حضرات انبیاء کرام پر کیا ذمہ داریاں تھی؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ یہ انقض ظہرک کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مضبوط اعصاب والے، مضبوط حوصلے والے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے، حقیقت پر اگرچہ محمول نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ واقعی وہ بہت بڑا بوجھ تھا، اور وہی بوجھ علماء کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ فرد کی اصلاح اور نظام کی اصلاح، یہ دو بڑی ذمہ داریاں تھیں جو حضرات انبیاء کرام کے کندھوں پہ آئی، افراد کی اصلاح کرنا اور پھر نظم اور نظام کی اصلاح کرنا۔ اور آج بھی علماء کی یہ دو بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے بندے کے پاس فقط جسمانی قوت کا ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ بندے کے اندر روحانی قوت کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مشین کتنی ہی پاورفل کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کے اندر بجلی کا کرنٹ نہیں ہوتا، مشین نے نہ حرکت کرنی ہوتی ہے، نہ کام کرنا ہوتا ہے، نہ پروڈکشن دینی ہوتی ہے۔ مشین بھی صحیح ہونی چاہیے، بجلی کا کرنٹ بھی پورا ہونا چاہیے۔ اگر بندہ مضبوط قوا والا ہے، مضبوط اعصاب والا ہے، لیکن روحانی قوت نہیں ہے، تو وہ بندہ معاشرے میں کوئی قابل ذکر کام کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ اور روحانی قوت سے معمور ہونے کے لیے پھر روحانیت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، روحانی دنیا کے حضرات کے ساتھ وابستہ ہونا ہوتا ہے۔ اور آپ حضرات تو ویسے بھی خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ آپ میں سے کئیوں نے ہمارے اسی ادارے میں 8 سال گزارے، کسی نے 6 سال گزارے، کسی نے 3 سال گزارے، کسی نے 2 سال گزارے۔ کم از کم آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ کو اس کا احساس و ادراک ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ وابستگی یہ اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل میں بندے کے معاون ہوتی ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے الفقی والمتفقہ میں، یہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بندہ سوال پوچھتا تھا، سوال کا جواب دے دیتے تھے، لیکن بعض سوالات ایسے ہوتے تھے کہ خود فرماتے تھے سلو سعید بن المسیب فإنہ قد جالس الصالحین، تم سعید بن مسیب سے یہ سوال پوچھو کیونکہ انہوں نے صالحین کی صحبت پائی ہے۔ اب سعید بن مسیب تابعی ہیں، عبداللہ بن عمر جلیل القدر پیغمبر صحابی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ سلو سعید بن المسیب فإنہ قد جالس الصالحین۔ معلوم ہوتا ہے کہ صالحین کی صحبت یہ فقط بندے کو نیکی تقوی سے آراستہ پہ راستہ نہیں کرتی، بلکہ علمی رسوخ کا باعث بھی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہہ دیا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا، وہ 1 رکعت ویتر پڑھتے ہیں، ویتر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کا جواب کیا تھا دعہ فإنہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت امیر معاویہ پر اعتراض نہیں کرنا، ان پر تنقید نہیں کرنی، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی ہے۔
تو یہاں یہ نہیں کہا کہ حضرت امیر معاویہ بڑے عالم ہیں، بڑے فہامہ ہیں، بڑے علامہ ہیں، بلکہ فرمایا کہ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگتا یہ ہے کہ صحبت صرف یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ کی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے، توکل والا، یقین والا بن جاتا ہے، بلکہ علمی استعداد اور علمی رسوخ کا باعث بھی ہو جاتی ہے یہ صحبت۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات جو علم کے آفتاب و مہتاب تھے، آج کی دنیا میں گویا کہ کوئی ان کا ثانی نہیں ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ اسلام کی یہ پچھلی جو 5 صدیاں ہیں، یہ 5 صدیوں میں علامہ انور شاہ کشمیری کے علم کی کوئی نظیر نہیں ملتی، یعنی 500 سالوں میں ان کے علم کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ حضرات تھے، علم کے پہاڑ تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت حاجی امداد اللہ مہاجری مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کے فیض سے استفاضہ کرنا، ان کے افادات سے استفادہ کرنا، یہ وہ ضروری سمجھتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، یہ وہ وقت تھا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گنگوا شریف میں اکیلے دورہ حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ حدیث کی 6 کتابیں تنہا پڑھاتے تھے، کوئی مدرس ان کے ساتھ اور نہیں ہوتا تھا، اور طلباء کی کثیر تعداد ان کے پاس ہوتی تھی۔ اس زمانے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد جو رابطہ کرتے رہے اور اعمال معمولات کی پابندی کرتے رہے، آخر میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط لکھا اور اپنی کیفیات کے بارے میں بتایا، اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ ہم سب کے لیے کافی سبق اور عبرت کا باعث ہے۔ چنانچہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں لکھا کہ آپ سے بیعت ہو گیا، بیعت کرنے کے بعد اپنے اندر 3 تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوں۔ پہلی تبدیلی کہ نصوص شرعیہ میں کوئی تعارض نظر نہیں آتا۔ علم نامکمل ہونا تو بندے کو نظر آتا ہے کہ یہ آیت اس آیت سے معارض ہے، یہ حدیث اس قرآن سے معارض ہے، یہ حدیث اس حدیث سے معارض ہے۔ نصوص شرعیہ میں بندے کو تعارض نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ آپ سے بیعت ہونے کے بعد نصوص شرعیہ میں تعارض نظر نہیں آتا، اور دوسری بات یہ کر لی کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن چکی ہیں، یعنی جو چیز شرعاً ناپسندیدہ ہے اس سے بچنا مجھے تکلف نہیں کرنا پڑتا، بلکہ طبعی طور پہ میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں، تو بلا تکلف میں اجتناب کر لیتا ہوں۔ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن چکی ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ میری نظر میں مدح اور غم دونوں برابر ہو چکے ہیں، کوئی میری تعریف کرتا ہے یا مجھ پہ تنقید کرتا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے دونوں برابر ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجری مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مبارک ہو، آپ کو بڑا کمال حاصل ہو گیا کہ نصوص شرعیہ میں تعارض نظر نہیں آتا، یہ علم کا کمال ہے، اور مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن گئی، یہ عمل کا کمال ہے۔ مدح اور ذم، تعریف اور تنقید آپ کی نظر میں برابر ہو گئی، یہ اخلاص کا کمال ہے۔ آپ کو علم میں بھی کمال حاصل ہو گیا، عمل میں بھی کمال حاصل ہو گیا، اور اخلاص میں بھی کمال حاصل ہو گیا۔ گویا کہ اللہ والوں کی صحبت کی بدولت علم میں کمال، عمل میں کمال اور اخلاص میں کمال بندے کو ملتا ہے۔ اور جب بندے کو علم میں کمال مل جائے، عمل میں کمال حاصل ہو جائے، اخلاص میں کمال حاصل ہو جائے،
फिर वो कामिल कहलाया जाता है, वो उलमा, फिर इसके बाद फुकाहा, फिर इसके बाद हुकमा की सफ में शामिल हो जाता है। एक आलिम होता है, एक फकीह होता है और एक हकीम होता है, फिर वो हुकमा की सफ में शामिल हो जाता है। और हुकमा के लिए फिर कुरान मजीद में रब्बानियीन का लफ्ज बोला गया है, वलाकिन कूनू रब्बानियीन, वलाकिन कूनू रब्बानियीन, तुम रब्बानियीन बन जाओ। रब्बानी कौन होता है? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल है, सही बुखारी शरीफ में मज़कूर है, कूनू उलमा फुक़हा हुकमा, तुम उलमा बन जाओ, फुक़हा बन जाओ, हुकमा बन जाओ। पहले बंदा आलिम बनता है, फिर फकीह बनता है, फिर उसके बाद वो हकीम बनता है। जब हकीम बन जाता है तो वो आलिम रब्बानी कहलाया जाता है। अल्लाह वालों की सोहबत जहां अमल से सरशार करती है, वहां इल्म में भी रुसूख का बाइस बनती है। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कई मरतबा इल्मुल कलाम के मुगलक और पेचीदा मसाइल को समझने के लिए मुझे हाजी इमदादुल्लाह महाजरी मक्की रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुराजात करनी पड़ती है, जबकि हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह काफिया तक पढ़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह का इल्म और उनका कमाल और उनका रुसूख वो हम सबको मालूम है। आज भी हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी किताबें ऐसी हैं कि उलमा जब उन किताबों का मुताला करते हैं उर्दू जुबान की लिखी हुई, तो वो भी तहय्युर में मुब्तला हो जाते हैं कि हजरत क्या फरमाना चाहते हैं और कैसे समझा जा सकता है। और किसी ने हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था कि आप इतने बड़े आलिम होकर भी हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिरी मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते हैं, जबकि वो तो बाकायदा आलिम भी नहीं है। तो हजरत ने फरमाया कि एक आदमी जिसने मिठाइयों के नाम सीख लिए हों, मिठाई बनाने का तरीका भी उसको आता हो, किताबों में उसने पढ़ा हुआ हो, लेकिन अमलन मिठाई खाई न हो, तो वो उसकी लज्जत से ना आशना होता है बल्कि महरूम रहता है। उसने पढ़ लिया कि गुलाब जामुन कैसे बनाए जाते हैं, गुलाब जामुन का साइज क्या होता है, उसकी रंगत क्या होती है, उसकी कीमत क्या है, उस पर आने वाला खर्चा कितना है, लेकिन जब तक गुलाब जामुन खा न ले तब तक वो बेचारा जायके से महरूम रहता है। फरमाया कि हमने मदारिस में रहकर मिठाई बनाने की तराकीब तो सीख ली, मिठाइयों के नाम तो सीख लिए, लेकिन हजरत हाजी साहब की सोहबत में जाकर मिठाई खाने का मजा हमें आ गया, लज्जत हमें उनकी सोहबत में हासिल हो गई। तो मालूम होता है कि अल्लाह वालों की सोहबत में फिर इल्म पर अमल करने का जज्बा बंदे को नसीब होता है, बंदा फिर आलिम रब्बानी बन जाता है। और ये वो वक्त था कि हमारे असलाफ अपने अपने वक्त के मशाइख के कदरदान हुआ करते थे। हमारे हजरत जी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं, अगर किसी को नाज है माकूलात में महारत पर, तो हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखें। अगर किसी को नाज है वुसअत मुताला और कुव्वत हाफजा पर, तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखें। अगर किसी को नाज है इकामत दीन के लिए कोशिशों पर, तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखें। अगर किसी को नाज है अपनी फकाहत और फिक्ही बसीरत पर, तो हजरत गंगूही रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखें। अगर किसी को नाज है अपनी कसरत तसानीफ पर या अपने कलम के कमाल पर, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखें। अगर किसी को नाज है दीन की दावत की कोशिशों पर, तो हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखें।
अगर किसी को नाज है हदीस पढ़ने पढ़ाने की खिदमत पर, तो हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखे। अगर किसी को नाज है अपनी फसाहत और बलागत और खिताबत पर, तो अमीर शरीयत हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखे। ये वो हस्तियां थी जो अपने अपने जमाने में आफताब व महताब थी अपने अपने मैदान में, लेकिन अपने ही जमाने के मशाइख और सूफिया के सामने हमें दो जानो नजर आती हैं। अगर ये लोग अपने फन में यकता थे, अपने मैदान के इमाम थे, उन्होंने जरूरत महसूस की है, तो हमें जरूरत क्यों नहीं महसूस होनी चाहिए? हमें भी चाहिए कि हम इस जरूरत को महसूस करें। अजीज भाइयों, असल में आपको बताना है कि आप बाहर की दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन आप बयान कर लेते हैं, कहते असर ही नहीं होता। आप दरस कुरान देते हैं, लेकिन तासीर नहीं है। आपसे अपने मुक्तदी संभाले नहीं जाते, अपने शागिर्दों को आप काबू नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये अमूमी मसला है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि उसकी बड़ी वजह यह नहीं है कि हमारे पास अल्फाज नहीं है, बड़ी वजह यह नहीं है कि हमारे पास अलमारी में किताबें नहीं है, बड़ी वजह यह नहीं है कि हम मोबाइल से मुताला नहीं कर सकते। बड़ी वजह यह है कि वो कल्बी कुव्वत और वो रूहानी करंट जिसने सामिईन, शागिर्दों को और अपने मुताल्लिकीन को काबू करना था, वो हमारे पास नहीं है। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब वाकया जिक्र फरमाया। फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग थे, तो उनकी मुरीदीन और मुताल्लिकीन बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी अकीदत से पेश आते थे। एक दिन उनके घुटने में दर्द था, तो अपने एक खादिम को बुलाया कि जरा इस पे मालिश कर लो। तो खादिम लगा हुआ था, घुटने पे मालिश कर रहा था। खादिम ने देख लिया कि सामने दो मुरीदीन थे, वो आपस में उलझ रहे थे और एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार थे। तो ये खादिम हैरान रह गया कि ये मुरीदीन तो अपने शेख का इतना अदब और एहतराम करते हैं, और आज शेख की मौजूदगी में आपस में उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अजीब लगा, तो शेख ने अपने घुटने की तरफ इशारा किया। तो वो खादिम समझ गया कि शायद वो ये कहते हैं जरा जोर से मालिश करो। उन्होंने और जोर से मालिश शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो खादिम के दिल में फिर वही ख्याल आया कि अजीब है, ये मुरीदीन पहले शेख से बड़ी मोहब्बत करते थे, पता नहीं आज क्या हो गया इनको, और बड़े शेख की मौजूदगी में ही ये लोग आपस में उलझ रहे हैं। जो ही ये ख्याल दिल में आया, शेख ने फिर घुटने की तरफ इशारा कर दिया। समझा कि शायद कहते और जोर से मालिश करो। उन्होंने और जोर से मालिश शुरू कर दी। और जब तीसरी मर्तबा ऐसा हुआ, तो शेख ने कहा कि मैं आपको ये नहीं कहता कि जोर से मालिश करो, मैं आपको ये कहता हूं कि आपको जो कुछ नजर आ रहा है ये इस घुटने की वजह से है। जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये इसी घुटने की वजह से है कि रात मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैं रात के अमाल मामूलात न कर सका, और उसका नतीजा यह निकला कि मेरी मौजूदगी में मेरे सामने मेरे मुरीदीन उलझ रहे हैं। अपनी रूहानी कुव्वत बंदे की मजबूत हो, सादा सी बातें करते हैं अल्लाह वाले, मजमे को तड़पा के रख देते हैं। रूहानी कुव्वत ना हो तो बड़े नायाब अल्फाज बंदा लेके आता है, मुहावरात इस्तेमाल करता है, ज़रबुल अमसाल इस्तेमाल करता है, सामीन पे जर्रा बराबर भी असर नहीं होता। आप अगर चाहते हैं कि मुआशरे में अच्छा किरदार अदा करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरासत के नतीजे में जो आपके कंधों पर मुआशरे की इस्लाह की जिम्मेदारी मौजूद है, उस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएं। जरूरी यह है कि आप हजरात अपने अंदर रूहानियत को मजबूत करें। अंदर की रूहानियत मजबूत होगी, आपको यकीन करें, न इतनी लंबी चौड़ी तकरीरों की जरूरत है, न लंबे चौड़े बयानात की जरूरत है, और नहीं आपको ये लफाजी की जरूरत पड़ेगी। किसी ने लिखा है कि
उर्दन में जमात गई थी, तो जमात थी भी ये इधर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की। अब उर्दन अरबों की जगह है और ये खैबर पख्तूनख्वा वालों को तो उर्दू भी नहीं आती, चजा कि वो अरबी में बात करें। तो ऐलान के लिए बंदा खड़ा हो गया और ऐलान कर रहा था कि दोस्तानो मुझको पैस न पोयेजू, दोस्तानो मुझको पैस न पोयेजू ताशत दलता के रागलियू। बस इतनी सी बात कर दी उन्होंने कि दोस्तानो यानी ऐ मेरे दोस्तों हमें कुछ समझ नहीं आती। बस इतना कहना था कि वो खुद भी रोने लगा और नवाजी जितने थे वो सारे रोने लगे। ये दिल का दर्द होता है, ये अंदर की कुव्वत होती है जो सामईन पर असर अंदाज होती है और उनको बदल के रख देती है। आप अगर चाहते हैं दर्स तदरीस के मैदान में हो, आप इमामत खिताबत के मैदान में हो, कलिमतुल्लाह के इला के लिए कोशिशें कर रहे हो, किसी भी तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत की जिम्मेदारी को आप निभा रहे हो, हर मैदान में रूहानी कुव्वत आपके लिए जरूरी है। रूहानी कुव्वत न हो आप तदरीस के मैदान में नहीं चल सकेंगे, आप इमामत खिताबत में सही कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे। कलिमतुल्लाह के आला के लिए कोशिश करेंगे तो अपने दोस्तों के साथ तो बाहम गरेबान हो जाएंगे, दस्तो गरेबान हो जाएंगे, लेकिन आप कलिमतुल्लाह के आला का काम नहीं कर सकेंगे। ये तब होगा जब अपनी रूहानियत मजबूत हो। रूहानियत को मजबूत करने के लिए अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक जोड़ना पड़ता है। ताल्लुक तो आप में से सबका होगा, 95% का तो होगा ना। मेरा यकीन है कि 95% का जरूर होगा, शायद 5% ऐसे हजरात हों जिनका अभी तक किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक न हो। तो फ़कत ताल्लुक बनाना काफ़ी नहीं होता, उस ताल्लुक को मजबूत भी बनाना होता है। राबता रखा करें। अजीज तलबा, आप हजरात खुशकिस्मत हैं, अगर आप लोगों ने 6 साल 8 साल ज़ाया कर दिए और आपको एहसास हो रहा है कि हम उस वक़्त मेहनत करते, कोई बात नहीं, आप अब मेहनत कर लें। अब अगर आप मेहनत करेंगे तो अब भी आपसे मौका हाथ से निकला तो नहीं है। आप तसव्वुफ और सुलूक का तो कमाल ये है कि आपसे ये मुतालबा नहीं करता तसव्वुफ कि आप मुस्तकिल तौर पे खानकाह में रहें। आप जहां कहीं भी हो शेख के बताए हुए अमाल मामूलात की पाबंदी करें और फिर राब्ता रखें, और इंशाल्लाह उसका असर आप अपने शागिर्दों में महसूस करेंगे, अपने मुक्तदियों में महसूस करेंगे, अपने हल्का असर में आप उसके असरात जरूर महसूस करेंगे। ये हजरत मौलाना आरज मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ये बलूचिस्तान के थे, और ये हाफिज हुसैन अहमद साहब दामत बरकातुहुम के वालिद गिरामी थे। ये हाफिज आरज मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि मैं दारुल उलूम देवबंद में पढ़ता था, तो दारुल उलूम देवबंद में दौरा हदीस के साल मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब देख रहा था कि मैं जमीन पे खड़ा था और दौरा हदीस की कुछ तलबा थे जो घोड़ों पर सवार हवा में उड़ रहे थे, और मैं सोचने लगा कि ये दौरा हदीस के तलबा हैं, घोड़ों पे सवार हवा में उड़ रहे हैं। अगर ये दौरा हदीस के तलबा हैं तो मैं भी दौरा हदीस का तालिब इल्म हूं, और अगर ये देवबंद में पढ़ रहे हैं तो मैं भी देवबंद में पढ़ रहा हूं, अगर ये हजरत मदनी की शागिर्द हैं तो मैं भी तो हजरत मदनी का शागिर्द हूं। ये घोड़ों पे सवार हवा में उड़ रहे हैं और मैं जमीन पे खड़ा हूं। तो मुझे ये बात अजीब लगी। मैं ये सोच रहा था कि ऊपर से एक आवाज आई कि ये शागिर्दी की वजह से नहीं है, ये शागिर्दी की वजह से नहीं है। फिर मैं सुबह जब उठा तो मैं सोच रहा था अच्छा शागिर्दी की वजह से नहीं है, तो वो क्या वजह है कि जिसकी बिना पे वो लोग घोड़ों पे सवार थे, हवा में उड़ रहे थे और मैं जमीन पे खड़ा था। फिर मुझे ख्याल आया कि हाँ, ये जो तलबा मैंने घोड़ों पे सवार देखे थे ये वो तलबा थे जो एक तरफ हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से अहादीस पढ़ते हैं और दूसरी तरफ उनसे बैत करके रूहानियत के मनाजिल भी तय कर रहे हैं। फरमाते हैं मेरे दिल में शौक पैदा हो गया कि मैं भी बैत कर लूं। चुनांचे जब उस्ताद जी मस्जिद में दरसगाह में तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज किया कि उस्ताद जी मुझे बैत फरमाएं। तो उस्ताद जी ने फरमाया कि बेटा अभी मैं आपको बैत नहीं करता, असर के बाद मेरे कमरे में और बहुत सारे लोग आए होते हैं, तो आप उसी वक्त आ जाएं, मैं सबको बैत करता हूं तो आपको बैत कर लूंगा।
फरमाते हैं कि जब असर के बाद मैं उस्ताद जी के कमरे में गया, मैंने देखा कमरा मुकम्मल लोगों से भरा हुआ था, जगह ही नहीं थी। मुझे दूर एक कोने में जगह मिल गई, मैं उस कोने में बैठ गया और हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी देर तक वाज नसीहत इरशाद फरमाते रहे। थोड़ी देर के बाद एक कपड़ा बिछाया गया कि जिसने बैत करनी है वो इस कपड़े को पकड़ ले। लोगों ने कपड़ा पकड़ लिया। मैं जरा दूर बैठा हुआ था तो मेरे तक कपड़ा नहीं पहुंचा। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ देखा, फरमाया कि आप तक कपड़ा नहीं पहुंचा। मैंने कहा नहीं पहुंचा। उनके पास अपना रुमाल था, ऐसे वो रुमाल मेरी तरफ फेंक दिया कि फिर आप ये पकड़े। कहते वो रुमाल सीधा आया और मेरे सीने पे लगा। बस रुमाल लगने की देर थी कि फिर मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि मुझे क्या हो गया। और जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कमरा सारा खाली हो चुका था, वहां कोई बंदा मौजूद नहीं था। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी नहीं थे, बाकी सारे लोग चले गए थे, मजलिस खत्म हो चुकी थी। बाद में फरमाया करते थे कि अब मुझे नहीं मालूम कि फिर मेरी बैत हो गई या नहीं हुई। लेकिन आप रूहानी कुव्वत देखें कि रुमाल के अंदर इतनी कुव्वत भर दी थी कि रुमाल गया और सीने पे लगा और लगते ही उनको बदल के रख दिया, पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। आज इसी चीज की जरूरत है। ज्यादा लच्छेदार तकरीरें और अल्फाज की ज़रूरत नहीं है, और बेहतरीन ज़रबुल अमसाल और मुहावरात से लोगों के दिल नहीं बदलते। असल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है रूहानी क़ुव्वत, और आजकल इसी का फुक़दान नज़र आता है। अल्लाह वालों की सोहबत बंदे को रूहानी क़ुव्वत से सरशार कर देती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, वो मुफ्ती भी थे, वो शेखुल हदीस भी थे, वो ज़माने के इमाम भी थे, वो मौलाना भी थे। लेकिन कोई बंदा आज या आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले या 1300 साल पहले किसी बंदे ने सहाबा किराम को इन अलकाब से याद नहीं किया कि इमाम अबू बकर सिद्दीक और शेखुल हदीस अब्दुल्ला बिन उमर और शेख तफसीर अब्दुल्ला बिन अब्बास, किसने उनको तज़किरा नहीं किया। सहाबा किराम के साथ कोई लक़ब किसी ने नहीं लगाया। हम आज भी अगर सहाबी को पहचानते हैं तो सहाबी के नाम के बाद रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा होता है, हम समझ जाते हैं कि ये सहाबी हैं। बस इतनी सी पहचान है। आखिर क्या वजह है? ये दूसरी निस्बतें व दूसरे अलक़ाबात, इनका तज़किरा क्यों नहीं किया जाता? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सहाबा किराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शरफ हासिल था, और सोहबत का शरफ वो शरफ है, ये वो एजाज है कि इसके सामने तमाम तर एजाजात हेज हैं, कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा जब एक मरतबा हमने उनको सहाबी कह दिया, सहाबी कहने के बाद फिर मौलाना और फिर शेखुल हदीस और मुफ्ती और बड़े कायद और फला, इसकी फिर जरूरत नहीं रही, क्योंकि सहाबी की लफ्ज में वो तमाम तर एजाजात और तमाम तर मनासिब ये सिमटे हुए पड़े हैं। सोहबत की वजह से हजरत सहाबा किराम को ये बुलंद मर्तबा मिला था। अल्लाह वालों की सोहबत जरूरी। और माशाल्लाह आप लोग तो मैंने पहले कह दिया कि काफी अरसे तक यहाँ सोहबत में रहे हैं। अब जो आप लोगों ने काम करना है वो ये कि जो साथी अपने शेख मुर्शिद से बैत हैं उनको चाहिए कि अब वो आमाल मामूलात की पाबंदी करें। मैं इसलिए नहीं कहता कि फ़कत आप खुद नेक बन जाएंगे, मैं इसलिए कहता हूं कि आप जिस मैदान में भी काम कर रहे हैं आप उस काम में जला महसूस करेंगे। मैं साल की बात नहीं कर रहा, मैं 6 महीने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 2 हफ्तों की बात कर रहा हूं। अगर आप सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के मामूलात की पाबंदी शुरू करें, जैसा कि करने का हक है, आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी नमाजियों में तब्दीली महसूस करेंगे। जो आप दर्स कुरान देते हैं तो सामिईन में तब्दीली महसूस करेंगे, पढ़ाते हैं तो शागिर्दों में तब्दीली महसूस करेंगे। वाज़ेह फर्क आपको नजर आएगा। दिल को दिल से राह होती है, और जब तक बंदे का अपना
ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत नहीं होता, वो अपने हल्का असर में लोगों को अल्लाह के साथ नहीं जोड़ सकता। आखिर क्या वजह है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन के पास भेजा कि फिरौन को दावत दे दो। वो बगावत और सरकशी पे उतर आया है और खास तौर पे इस बात की ताकीद फरमाई कि वला तनिया फी जिक्री, जिक्र में सुस्ती नहीं करनी, मेरी याद में सुस्ती नहीं करनी। मालूम होता है कि जब बंदे का अपना दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद से मामूर होता है, कोई बंदा खुद अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो किसी को दावत देता है तो वाकई उसकी दावत का फिर असर होता है और वो अगला बंदा मुताअस्सिर हो जाता है। इस चीज का एहतमाम करें।